Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 21 January 2021. I am teaching you chapter number 7, protecting plants and animal. So, all of you open page number 50. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video, student, I discuss classification of animals. Of classification of animals. So according to the eating habit, we have divided it into a 4 groups. According to the eating habit, we divided this into a 4 groups. First is herbivore animals. So first is herbivore animal. These are plant eating animals. They eat only plant. Is it clear? Like sheep and cow. There are many more example of herbivorous animals, but I have discussed this time only two, like herbivorous animal like cow है, sheep है, camel है, goat है, donkey है, zebra. So these are herbivorous animals. Second classification which I explain you, that is carnivore. Carnivore animals. So what are these animals? These are flesh eating animals. So it means that they kill other animals. These are flesh eating animals. It means they kill other animal and eat the flesh of that animals. So the animals like lion, tiger, leopard, fox, all these come in this category, that is carnivore animals. The third classification is of omnivore. Third is, which I explained you, is that the omnivore animals. Animals that eat plants and animal flesh. Okay. Or you can also say the animals that can eat plant and flesh of the animals. Both the things, that are known as omnivore animals. Even student, we are human beings, we also come in this category of omnivorous, because we eat plants also and we eat flesh of the animals also. So crow is also example of omnivorous animal. Bear is also example of omnivore animal. So next and the most important group which I discuss with you, that is decomposers.
decomposers. So these decomposer are microorganism. Why we say these decomposer microorganism? Because they are very small in size. Even we are unable to see them with our naked eyes. हमें हमारी आंखों से ये दिखाई नहीं देते हैं. So if you want to see this microorganism, you can see them in a laboratory with the help of a microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. इनका साइज बहुत छोटा आता है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म के आगे हमने एक वर्ड ऐड कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द environment. Okay, they play a very important role in cleaning the environment. So because what is the reason for that? Reason is that these microorganisms feed on dead plants and animals. ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल ही इनका फूड है बेटा. ठीक है, सो आप जब देखते होगे अगर कोई एनिमल डेड हो जाता है या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद देखते होगे वो खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. तो कहाँ गायब हो जाते हैं? यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उनका फूड है, ये उन्हें खा जाते हैं. इस तरह ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं और दे रिलीज मिनरल्स इन द सॉइल. और सॉइल में ये क्या रिलीज करते हैं बेटा? मिनरल रिलीज करते हैं. एंड विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल इससे ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है. और इस मिनरल का यूज कौन करता है बेटा? इन मिनरल्स का यूज प्लांट्स करते हैं. ठीक है, सो मिनरल इज यूज बाय द प्लांट्स बिकॉज दीज मिनरल रिच सॉइल इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, अगर मिनरल रिच सॉइल है तो उसमें प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया. और इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और फंजाई. ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था जैसे जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं. प्लांट ईटिंग एनिमल्स मीन्स हार्बीवोरस. तो ये किस में आए थे कैटेगरी में? ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स. ये किस कैटेगरी में आए थे बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, बिकॉज प्लांट्स आर ओनली द प्रोड्यूसर. प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है, और उसके बाद जितनी भी कैटेगरी आ रही है लिविंग बींग्स की, वो सब क्या है? कंज्यूमर है. तो ये डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं हार्बीवोरस एनिमल, इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर बोला गया. ठीक है, अब जो आपके कार्निवोरस हैं, दिस कार्निवोरस एंड दिस कैटेगरी दैट इज ओमनीवोरस. ये सब जितनी भी कैटेगरी है, अब कार्निवोरस और ये कैटेगरी जो आपकी ओमनीवोरस है, ये आपके आगे सेकेंडरी. ठीक है, ये आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में इसलिए आ गए क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं ये क्या खाते हैं? दे ईट फ्लैश ऑफ, दे किल अदर एनिमल्स एंड ईट द फ्लैश ऑफ दैट एनिमल्स. सो ये डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड नहीं है. ये उन एनिमल्स को किल करके उनका फ्लैश खा रहे हैं जो प्लांट्स खाते थे, जिन्हें हमने हार्बीवोरस बोला था. इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके कार्निवोर एनिमल्स भी आ गए और ओमनीवोरस एनिमल भी आ गए. ओमनीवोरस इसलिए यहाँ पे यूज किया कि ओमनीवोरस क्या है? वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. ठीक है, दे बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. ठीक, अब इसके बाद हमने फूड चेन डिस्कस की थी. ठीक है, इसके बाद हमने फूड चेन डिस्कस करना स्टार्ट किया था. द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर एंड गेटिंग इटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए फूड चेन. ठीक है, फूड चेन है, ये क्या है? फूड चेन, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, जैसे
अभी एग्जाम्पल के संग बताएंगे. आई शो यू द पिक्चर, देन आई विल राइट दिस थिंग ऑन द बोर्ड, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वन ऑर्गेनिज्म बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, लिविंग बींग्स जितने भी हैं वर्ल्ड में, सब एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह डिपेंड हैं. सब एक दूसरे पे डिपेंड है. जैसे प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड है. अगर फूड चेन अभी हम डिस्कस करेंगे विद द पिक्चर, आपको बताएंगे तो आपको और क्लियरली ये बात समझ में आएगी. ठीक है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, एक चेन बनी हुई है. ठीक है, जिससे कि नेचर में बैलेंस बना हुआ है. जिससे कि नेचर में बैलेंस बना हुआ है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर एंड गेटिंग इटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फूड चेन. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और फाइनली क्या होता है, और वो भी कोई उसको कोई और खा जाता है. तो यही क्या आपकी फूड चेन है. ठीक है, सी द पिक्चर ऑफ ए फूड चेन. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 51. 51 पेज पे पिक्चर दी हुई है. ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फूड चेन. हमने प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा है, ये दे आर द ओनली प्रोड्यूसर्स. और बाकी जित 4 पिक्चर जो हैं, ग्रास ओपर है, एक में फ्रॉग है, स्नेक है और फिर ईगल है. तो ये सारे किस में आए बेटा, ये सब कंज्यूमर्स हैं. बिकॉज प्लांट्स कैन ओनली प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनमें से प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. बाकी जितने भी हैं वो सारे किस कैटेगरी में आए बेटा, ये आपके आए कंज्यूमर्स में. ठीक है, दिस पिक्चर इज ऑन पेज नंबर 51. सी, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ग्रास. ओके, सो आई एम नॉट मेकिंग द पिक्चर, डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप समझ लो ऐसे ही. नहीं तो चलो ठीक है, छोटा छोटा बना देता हूं. फॉर एग्जाम्पल ये ग्रास है. ठीक है, अब ये क्या है, प्रोड्यूसर. ठीक, फिर नेक्स्ट पिक्चर है ग्रास ऑपर की. ठीक है, तो ये है ग्रास ऑपर. ठीक, ये क्या है बेटा, आपका प्राइमरी कंज्यूमर. इज इट क्लियर. नेक्स्ट पिक्चर है आपकी, नेक्स्ट पिक्चर है फ्रॉग.
ये पिक्चर हो गई फ्रॉग की। इज इट क्लियर? ग्रास ऑपर, फिर आगे आपका फ्रॉग, ठीक है। ये फ्रॉग आपका आ गया बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट आपका अच्छा, सो फाइनली ये आपका है बेटा स्नेक। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए स्नेक। ये आपका आ गया टर्शरी कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट आपका है ईगल। ठीक है, अब ये आपकी हो गई बेटा ईगल। इसको हमने बोला फाइनल कंज्यूमर। ईगल को बोला। अब देखो ये एक स्मॉल फूड चेन है विच यू आर एबल टू सी ऑन योर बोर्ड। अपने बोर्ड पे आप ये फूड चेन देखो बेटा और इसे समझो, ठीक है। देखो इसमें जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। बाकी जितने भी है ग्रास ऑपर है, फ्रॉग है, स्नेक है और ईगल, ये सबके सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं। देखो फूड की एक चेन बनी हुई है, ठीक है। ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऑपर ने खाया, ठीक। अब इसको किसने ईट कर लिया? फ्रॉग ने ईट कर लिया, ठीक है। और अब फ्रॉग को किसने ईट कर लिया? स्नेक को। और स्नेक को किसने ईट किया? ईगल ने। तो सारे ये क्या एक चेन बनी है, फूड चेन, इसीलिए इसको फूड चेन बना बोला गया है, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको क्या बोला गया है? फूड चेन बोला गया है। सारे देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ग्रासहोपर का फूड क्या था? प्लांट्स, ग्रास था जिसे हमने प्रोड्यूसर बोला, ठीक है। फ्रॉग ईट ग्रासहोपर एंड स्नेक ईट फ्रॉग एंड फाइनली ईगल ने स्नेक को खाया, ठीक है। तो ये एक बहुत सी फूड चेन्स होती हैं, ये एक सिंपल फूड चेन है। ऐसी कई फूड चेन्स आपको शॉर्ट में मिल जाएगी, जैसे ग्रास है या ग्रीन प्लांट्स आप बना देते हो, उसको कौन खा रहा है? डियर खा रहा है। डियर को किसने खा लिया? टाइगर ने खा लिया। तो ये भी एक फूड चेन है, ठीक है। क्योंकि वहां पे प्लांट्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। उसको खाया किसने? हार्बीवोरस एनिमल ने, जो कि डियर था। और डियर को फाइनली किसने खा लिया? टाइगर ने खा लिया। तो वो ये भी एक तरह की फूड चेन है। तो अब देखो इस फूड चेन में प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, ठीक है।
तो ये प्रोड्यूसर है, इससे खाया ग्रास हॉपर ने, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। क्योंकि बेटा हम जो है ना एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे स्टेप बाय स्टेप जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखो अर्थ पे द ओनली प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन वो ही एक ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बना सकते हैं। बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड्स हैं, प्लांट्स पे डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसे प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला गया, क्योंकि प्लांट्स को डायरेक्टली क्योंकि जो एनर्जी आई उस एनर्जी को किसने खाया डायरेक्टली, देखो ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है। और हर अब इसको इसलिए प्राइमरी बोला, ठीक है। ये प्रोड्यूसर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर है ना। ग्रास हॉपर इज इटन बाय फ्रॉग, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। नाउ दिस फ्रॉग इज इटन बाय अ स्नेक, तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर। और इससे फाइनल कंज्यूमर क्यों बोला कि अब इस स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रही है, ठीक है। तो अब ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज अ प्रोड्यूसर, grasshopper is a primary consumer, frog is a secondary, snake is the tertiary, एंड फाइनली किसने ईट किया स्नेक को, ईगल ने ईट किया। तो ये आपकी फूड चेन है। तो यही आपको डेफिनेशन में भी बताया, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वन ऑर्गेनिज्म बाय द अनदर एंड गेटिंग इटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज फूड चेन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस फूड की चेन की वजह से ना बेटा सारी चीजें बैलेंस हैं। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर कार्निवोरस एनिमल बहुत डेंजरस होते हैं, दे किल हार्विवोरस एनिमल, इतने सीधे होते हैं, ठीक है, उनको मार के उनकी जान से मार देते हैं और उसके फ्लैश को खाते हैं। तो दैट इज नॉट राइट, किसी को किल करके नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग भी ओमनिवरस हैं, हम लोग भी एनिमल्स खाते हैं, तो वी बाई देयर फ्लैश फ्रॉम द मार्केट, तो वो भी तो किल करके ही खाते हैं। लेकिन देखो बेटा ये एक बैलेंस है इन नेचर में, ठीक है, ये एक बैलेंस है। अगर आप सोचो कि कार्निवोरस एनिमल होते ही नहीं, ठीक है, अगर आप सोचो कि कार्निवोरस एनिमल बहुत ही खतरनाक है, दूसरों को किल करके खा जा रहे हैं, तो कार्निवोरस एनिमल होने ही नहीं चाहिए थे, तो बेटा दिस इज रॉन्ग। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता कि सिर्फ हार्विवोरस एनिमल होते और कार्निवोरस एनिमल नहीं होते, तो क्या मैंने आपको बताया मैंने आपको क्या बताया, अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं होते, क्योंकि सबको लगता है कि सबसे खतरनाक इस चेन में कार्निवोरस ही है जो सबको किल करके खा जा रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं, अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं होते तो चेन बैलेंस नहीं होती। व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन क्या होता, क्योंकि बेटा उसका रीजन ये होता कि अगर कार्निवोरस को कौन खाता, हार्विवोरस एनिमल्स को कौन ईट करता है, कार्निवोरस एनिमल ईट करते हैं, ठीक है। इफ देर इज नो कार्निवोरस एनिमल देन व्हाट्स हैपन, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की लीव्स हैं, इन सबको हार्विवोरस एनिमल खा जाते, इन सबको हार्विवोरस एनिमल, एक भी प्लांट नहीं रह जाता अर्थ पे, क्योंकि हार्विवोरस एनिमल इतने ज्यादा होते हैं, उनको खाने वाला कोई नहीं होता, ये पूरे प्लांट्स ही खा जाते। और आपको तो पता ही है प्लांट ही से हमें लिविंग गैस मिलती है, वो है क्या, ऑक्सीजन। प्लांट्स के बिना लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, नहीं। तो दैट इज द रीजन ये छोटी छोटी चेन्स हैं फूड की, और एंड इसको नेचर को बैलेंस रखने के लिए कार्निवोरस एनिमल्स भी हैं, अगर नहीं तो हार्विवोरस एनिमल पूरे प्लांट्स खा जाते, ठीक है। तो इस तरह देखो ये फूड चेन है कि कौन किसको खाता है, कौन क्या कर रहा है, फिर फाइनली लास्ट में फाइनल कंज्यूमर कौन है, तो यही फूड चेन है बेटा। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय द अनदर एंड गेटिंग इटन बाय अनदर वन, दैट इज नोन एज फूड चेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फूड चेन। आई होप you all are able to understand what is a food chain or what is the importance of food chain, of understand food chain क्या है, ये तो आपको समझ में आ ही गया, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैंने हार्विवोरस और कार्निवोरस के एनिमल्स को लेके भी बता दिया आप लोग को, ठीक है, कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फूड चेन है कि कौन किसको ईट करता है, ठीक है। इसी तरह की और भी चेन्स हैं,
नाउ लेट डिस्कस इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, सब एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह डिपेंड है। ये लाइन बुक के स्टार्ट जब चैप्टर किया था तब मैंने आप लोग को बताई थी, चाहे वो फूड के लिए हो, ठीक है, या लिविंग गैस ऑक्सीजन के लिए हो, ठीक है। सो इन मैनी वेज दे आर ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। अब फूड चेन डिस्कस कर ली, व्हाट इज ए फूड चेन हो गया। अब देखो एनिमल्स आर आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर शेल्टर। देखो एनिमल्स को प्लांट से, ठीक है, एनिमल्स को प्लांट से क्या है, फूड तो मिल ही रहा है, बट अदर many things the animals are getting from the plants। क्योंकि देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर लिविंग इन द हाउसेस, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो हाउसेस हम बनाते हैं इसका मटेरियल भी हमें कहां से मिल रहा है, ठीक है, इसका मटेरियल भी हमें नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है। लिविंग थिंग की लाइफ नॉन लिविंग थिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आपकी सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये लिविंग में नहीं आते हैं, लेकिन क्या इनके बिना हमारा कोई काम चल सकता है? नो, कोई काम चल सकता है इनके बिना? नहीं चल सकता, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, एनिमल्स आर आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब हम एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, एक तो हो गया फूड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले मैंने आपको लिख दिया, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सेकंड हो गया बेटा शेल्टर, ठीक है, सबको शेल्टर की जरूरत होती है। शेल्टर द प्लेस विच सेव देम फ्रॉम द हर्श क्लाइमेट, ठीक है, कभी क्लाइमेट या वेदर बहुत कोल्ड होता है, कभी वेदर हॉट होता है, ठीक है, देखते हो कभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो शेल्टर की जरूरत सबको है, ह्यूमन बींग्स को है तो एनिमल्स को भी है, ठीक है। सो animals also depend on plant for their shelter, some animal lives on trees like monkey and birds, ठीक है। अब देखो जो ये फॉरेस्ट है और जो ट्रीज हैं, देखो ये जो फॉरेस्ट हैं ये दे आर द होम्स फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जंगलों में रहने वाले जानवरों के ये घर हैं। इसीलिए हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आज एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लेस होती जा रही है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन demand of the food is also increase, and we need more and more land for cultivation also and for making the houses also and other purpose also। फैक्ट्रीज बन रही हैं, मॉल्स बना, वो तो अलग चीज़ है, एक मैं कॉमन सी बात लेके चल रहा हूँ कि भाई घर की जरूरत तो सबको होती है, वेदर से रिच पीपल, एवरेज पीपल, पुअर पीपल, घर तो सबको चाहिए, ठीक है। तो हमने इतने ज़्यादा फॉरेस्ट काट काट के लैंड फ्री कर दिए, तो इसीलिए जो एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत लेस होती जा रही है, क्योंकि ये हमने इनके नेचुरल होम्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जहाँ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट काट काट के लैंड बनाने लगे, तो फिर एनिमल्स कहाँ जाएंगे? दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट्स ने बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन की हैं, जहाँ पे ऐसे एनिमल्स को प्रिजर्व रखा जाता है, प्रिजर्व करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन डे बाई डे बहुत ही लेस होती जा रही है, ठीक है। तो सम एनिमल लिव ऑन ट्रीज लाइक मंकी भी दिया, और जितने भी बर्ड्स हैं ये भी लगभग सारे ट्रीज पे ही रहते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक स्क्वायरल है, ठीक है, स्क्वायरल गिलहरी को बोलते हैं बेटा। एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, स्नेक एंड इंसेक्ट लिव इन द होल्स ऑफ द ट्री, ये कहाँ रहते हैं बेटा? ट्रीज में जो होल्स होते हैं ना उनमें रहते हैं। टाइगर है, एलिफेंट, डियर टेक शेल्टर अंडर द ट्री, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हर्ष क्लाइमेटिक कंडीशन से, हर्ष वेदर से
ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आप खुद देख लो, कभी गर्मी के दिन में बहुत हॉट क्लाइमेट है लेकिन आप किसी पेड़ के शेड में खड़े हो तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। सो इफ वी कट ट्री इट विल टेक द एनिमल्स होम्स अवे। ये मैंने ऑलरेडी आपके संग डिस्कस कर लिया है कि जो फॉरेस्ट हैं ये नेचुरल होम्स हैं, ये ट्रीज जो है फॉरेस्ट में नेचुरल होम्स हैं किसके, एनिमल्स के। एंड इफ वी are cutting the trees, it means that we are destroying the natural homes of the animal. Okay student, in the next video we will continue this topic. Thank you.